ہمارے ہی ذرائع نے یہ بھی خبر دی تھی کہ پنجاب حکومت خادم حسین رضوی کے مزار کو بھی لاہور سے باہر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے، لیکن 9 دن گزرنے کے باوجود حکومت ابھی تک ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب حکومت اور پولیس کے اعلیٰ حکام گزشتہ 9 دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور جلد گرفتار بھی کر لیا جائے گا، لیکن ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ مذہب کے نام پر جھتتے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت نے تحریک لبیک کے سربراہ کے نام پر 95 بینک اکاؤنٹس، مسروقہ اور غیر مسروقہ جائیدادیں سیل کر دی۔ 3800 فائنانسیئرز کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے اور حکومت نے تنظیمات اہل سنت پاکستان سے مذاکرات میں تحریک لبیک کے بے گناہ کارکنان کو رہا کرنے، سیل مساجد اور مدارس کو بھی کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ حکومتی وفد اور تنظیمات اہل سنت کے وفد کے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان بھر میں سیل کی گئی تمام مساجد فوری کھولنے اور آئندہ کسی بھی مسجد کو سیل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی آر آئی سے رجسٹرڈ تمام سیل مدارس کو بھی فوری کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بے گناہ کارکنان کو بھی فوری رہا کرنے پر اتفاق ہوا ہے، مگر بے گناہ افراد کی فہرست تنظیمات اہل سنت فراہم کریں گی۔ ساتھ ہی ملک میں امن و امان قائم کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ ان مذاکرات میں مذہبی اور قومی مسائل پر باہمی مشاورت جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان کے گھر پر علماء کرام سے آج ملاقات کی۔ سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ بھی وزیر داخلہ کے ساتھ تھے۔ علماء کرام سے ہونے والی اس ملاقات میں وزیر داخلہ نے علماء کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ علماء کرام کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ مساجد اور مدارس کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی۔ فریقین کے درمیان رابطے کے لیے ہمہ وقت ایک فوکل پرسن موجود رہے گا، جبکہ بہت جلد اسلام آباد میں ایک تفصیلی نشست کے اہتمام پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ وفاقی سطح پر معاملے کو سلجھانے کی کوششیں جاری ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور کارکنان کے خلاف چھان بین کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ آج پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے 3800 فائنانسیئرز کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ ان فائنانسیئرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج ہوں گے۔ ان فائنانسیئرز میں بڑے بڑے نام اور پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعد رضوی کے گھر سے 1 کلو 920 گرام سونا، 898 گرام چاندی، 69 برانڈڈ گھڑیاں، سونے کے کنگن، 12 بریسلیٹ، سونے کے ہار، چاندی کے تاج، انگوٹھیاں اور 50,000 بھارتی روپے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی کے سربراہ کے نام پر 95 اکاؤنٹس تھے کہ جنہیں منجمد کر دیا گیا۔ 3800 فائنینسرز ہیں جی، نیشنل اور انٹرنیشنل، جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی طرح فائنانس کرے یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اشتعال انگیزی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرے، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے۔ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب جو دونوں بھائی ہیں آج نہیں تو کل وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ وہ جو 50,000 بھارتی کرنسی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہی تھی۔ 1 کلو 940 گرام، بھائی میرا تو اتنا صاحب ہی نہیں ہے جتنا یہ کلو اور اتنا سونا ہے۔ یہ لوگ آپ کو مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 95 بینک اکاؤنٹس ہیں جی سعد رضوی صاحب کے نام پہ، اور ان کی باقی جو پوری منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ تمام فریز کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے، جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بعد ازاں وفاقی وزیر طلال چودھری نے بھی پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ سعد رضوی کے نام پر 100 اکاؤنٹس ہیں اور ان میں سے کئی اکاؤنٹس سود پر چل رہے ہیں۔ 69 کڑیاں، 69 واچز، برانڈڈ واچز ان کی تجوری سے نکلی ہیں۔ اتنی توشہ خانے میں بھی پاکستان کے نہیں گئی، اور ہر اس برانڈ کی وہ گھڑی تھی جس کو یہ کہا کرتے تھے یہ غیر مسلم ہے، یہ ان کے برانڈز ہیں، یہ بین کر دیں۔ 100 اکاؤنٹس ایسے ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں جن میں ان کی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس ٹرانزیکشن میں کروڑوں روپے کا پروفٹ انہوں نے اسی بینکنگ سسٹم سے لیا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ ہوش شبہ انکشافات ہیں۔ عظمیٰ بخاری یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کی 330 مساجد کا انتظام حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور یہ مساجد اذان و نماز کے لیے تو کھلی رہیں گی، لیکن لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ٹی ایل پی کے 223 مدارس کی جیو ٹیگنگ بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور ان مدارس کو بھی بہت جلد
खोल दिया जाएगा। अज़मा बुखारी ने यकीन दहानी भी कराई है कि बानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मज़ार को कहीं और मुंतकिल नहीं किया जा रहा, मगर इससे पहले हमारे ही ज़राए ने यह भी खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार को भी लाहौर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस तहरीक लब्बैक के कारकुनान का पुलिस रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्हें कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें किसी मुल्क का वीजा मिल सकेगा, ना ही ये मुल्क के अंदर कोई सहूलत हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से बाकायदा स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल भी कायम कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले और दूसरे दर्जे में टीएलपी की क़यादत और तीसरे दर्जे में वो लोग शामिल हैं कि जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इश्तियाल अंगेजी के जरिए लोगों को उकसाया करते थे। इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अगले 48 घंटों में फैसला हो सकता है, लेकिन 9 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत अभी तक टीएलपी के सरबरा साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम गुज़िश्ता 9 दिनों से दावा कर रहे हैं कि दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। इससे पहले ये दावा किया जाता रहा कि टीएलपी के दोनों रहनुमा मुरीदके में क्रैकडाउन के बाद आजाद कश्मीर फरार होने में कामयाब हो गए। साद रिजवी और उनका भाई पहली बार मुरीदके में एहतजाजी कैंप से पैदल जाते और फिर मोटरसाइकिल पर फरार होते देखे गए। बाद खसूसी टीम ने दोनों रहनुमाओं की आखिरी लोकेशन आजाद कश्मीर में ट्रेस की और आजाद कश्मीर की हुकूमत से मदद तलब की, मगर ये रहनुमा ताहाल रूपोश हैं। रहा सवाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का, तो 2021 में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को टीएलपी पर पाबंदी लगाने की समरी अरसाल की थी। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम तो करार दे दिया था, मगर 7 माह बाद इसी जमात ने वजीराबाद में धरना दिया और इस धरने के नतीजे में हुकूमत ने एक मुआहिदे के तहत इस पर से पाबंदी हटा दी। तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने यह दावा किया था कि टीएलपी पर से पाबंदी हटाने का मकसद इस जमात को कौमी धारे में लाने में मदद है और यह फैसला वसीतर कौमी मुफाद में किया गया। मगर आज करीबन 4 साल बाद एक बार फिर मौजूदा हुकूमत इस जमात पर पाबंदी के लिए सोच रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ हसन रजा। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अहम तरीन मुशावरत हो रही है और जबकि दूसरों को भी यकीन दहाई कराई जा रही है उलमा कराम को दीगर मसाजिद के हवाले से, क्या टीएलपी पे क्रैकडाउन उतनी शदोमत से ही जारी है? नहीं, इस वक्त जो है जो क्रैकडाउन में काफी नरमी देखी जा रही है और खास तौर पे हुकूमत ने अपनी पॉलिसी काफी तब्दील की है। फेडरल और खास तौर पे पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत ने जो मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं उलमा कराम और खुसूसन जो है अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, तमाम उलमा कराम से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इसी तरह पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं और हुकूमती ओहदेदार ये मुलाकातें कर रहे हैं, उनको इत्तेमाद में ले रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हमने इन पर पाबंदी की सिफारिश की है और वफाकी हुकूमत ने इस पर बड़ा एक्शन लेना है और पाबंदी लगेगी, जिसको देखते हुए ये एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज आप देखें पंजाब में भी और वफाक में इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताकि बेस बनाई जा सके, ताकि कल को अगर थ्रू सर्कुलेशन या वफाकी कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है और उसको इस पर पाबंदी आयद की जाती है तो कोई जो है कोई उनके खिलाफ कोई महाजराई ना की जा सके। और इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने ये तमाम है वो चीजें सामने रखी हैं कि बैंक अकाउंट की तफसीलात क्या है, मदारिस और मसाजिद किनको तहवील में लिया गया जो कि जो है पंजाब का महकमा औकाफ के सपुर्द की गई है वो चलाएगा। आइंदा चंद रोज में उसको खोलना भी जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो है वो रिपोर्ट्स को जो इकट्ठा करके उसको बेस बना के उन्होंने ये जो है मसाजिद और मदारिस को महकमा औकाफ के सपुर्द किया है। पंजाब हुकूमत के जो महकमा दाखिला पंजाब है वहाँ पे एक बाकायदा सेल तश्कील दिया गया है जहाँ पे तमाम तर मालूमात इकट्ठी की गई और उलमा कराम से राब्ते किए गए, उनसे मुलाकातें शुरू की गई और उनको इत्तेमाद में इस वजह से लिया जा रहा है कि इन्होंने रियासत के अगेंस्ट में एक्शन लिया है। लेकिन उलमा कराम की जानिब से भी एक सवाल सामने आता रहा कि यहाँ पर फायरिंग कैसे की गई, आगाज कैसे हुआ, ये दोनों भाई कहाँ पर हैं, इसके जवाबात ना तो हुकूमत उनको दे रही है और ना ही एज ए सहाफी जब हम उनसे पूछते हैं या वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा से पूछा जाता है ना उनकी तरफ से कोई कैटेगोरिकली कुछ जवाब सामने आ रहा है। अलबत्ता वो मुख्तलिफ बहाने जरूर बना रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, हम भी इसकी तलाश कर रहे हैं। उनके सामने एक सवाल किया जो मैंने उनसे पूछा कि एक तरफ तो आप 24 घंटों में मुल्ज़म को गिरफ्तार करने का दावा रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दो भाई जो कि पंजाब से चले गए, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है,
तो इस पर उनका ये कहना था कि इसको मैं ओपनली नहीं बता सकती। जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछने की कोशिश की तो इनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो दो भाई कहाँ पर हैं। मगर ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं जिसमें पहली 2 दर्जों में टीएलपी लीडरशिप का जिक्र है। आप कह रहे हैं कि अभी तक जो पहले दावेदार थे कि उनकी इंच को ट्रेस कर लिया गया है, अब मुकम्मल तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी दोनों भाई साद और अंस कहां हैं। मगर दूसरी जानिब कारकुनान के हवाले से आप कह रहे हैं अभी हौला हाथ रखा गया है क्योंकि पुश बैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो आपको लग रहा है कि अमली तौर पर जो टोन और टेनर है जमात को बैन करने का ही मुकम्मल फैसला कर लिया गया है? देखिए, मजहबी जमातों की तरफ से काफी प्रेशर आया, मुफ्ती मुनीर साहब की तरफ से काफी प्रेशर आया। बाकायदा उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया जिन्होंने जो मुरीदके में हुआ उसकी शदीद मजम्मत की थी। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, असासे निकाले गए, चीजें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हासिल की गई, और उसके बाद जो है जो उलमा कराम थे उनसे मुलाकातें शुरू की थी। उनको बताया गया कि ये काम है, जो भी आ रहा है तो हम उनकी गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं। तो उनके सामने जो इन्होंने चार्जशीट पंजाब हुकूमत ने रखी और उसमें सिर्फ पुलिस और ये हुकूमती अहदेदार के अलावा दीगर अफराद भी शामिल थे जिन्होंने उलमा कराम से राब्ते करके प्रॉपर चार्जशीट उनके सामने रखी कि ये मामला है तो हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हमने इसको कलदम करार देना है, हमने इस पर पाबंदी आयद करनी है। जिसको देखते हुए उलमा कराम के जो मुख्तलिफ राब्ते थे उन तक भी अप्रोच करके चीजों को काफी नरमी की गई है। और आज भी आप देखें पंजाब की जो पुलिस है उन्होंने उलमा कराम से मुलाकात की और दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला सईद कराची गए। बिल्कुल, मगर हसन ये बताइएगा कि देखें कहीं ना कहीं तो ये एविडेंस भी मांगते होंगे। कल को अगर साद और अंस आके तमाम तर दावों को झुटलाना शुरू कर दें तो उसका क्या एहतमाम किया गया है? क्या ये तमाम तर जो सोना चांदी घड़ियां ये सब कुछ ले बेयर की गई हैं? देखिए, वो ये कहते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसपे ये FIA के साइन करवा रहे हैं, जिसपे सब इंस्पेक्टर के साइन हो रहे हैं, जिसपे बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की हमने अप्रूवल ली है, वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। हुकूमत इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार कर रही है ताकि इसको चैलेंज ना किया जा सके। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये किस जगह से ये चीजें आपके पास सामने आई हैं, क्या ये सिर्फ साद रिजवी के घर से आई, किसी एक मदरसे से आई, तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जिससे ये हमें मालूमात सामने आई हैं, जिसमें घड़ियों की डिटेल्स आ रही हैं, इंडियन करेंसी की डिटेल्स बताई जाती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्या ये कंफर्म है, आप जब गए तो वहां पर उसकी वीडियो कहाँ पर है, तो उसकी वीडियो पंजाब हुकूमत तो दस्तयाब नहीं कर सकती अभी तक। और दूसरा जो ये सवाल कर पहले जो चंद रोज पहले इन्होंने कहा था कि कश्मीर में शायद हमें लोकेशन ट्रेस हो गई और फिर ये पुलिस के मुख्तलिफ जराये के दावा कर रहे थे कि हमारी एक्सेस पहुंच गई है। लेकिन अचानक कोई ऐसा कुछ हुआ और उसमें डायरेक्शन आई कि उसके बाद ये कोई भी पुलिस या हुकूमती अहदेदार ये बताने से गुरेजा होने लगा कि ये दोनों भाई कहाँ पर हैं। तो उनका एक ही सबकी स्टेटमेंट सामने आई कि हमें अंदाजा नहीं, मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि दो भाई लाहौर मुरीद के से जाते हैं, उनकी दीगर क़यादत जो कि 17 के करीब दीगर क़यादत है वो भी मंजर से गायब है और उनमें से कोई भी सामने नहीं आ पा रहा, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। हुकूमत ना तो पूरे पाकिस्तान से कहीं पर उनको चीजें सामने लेकर नहीं आ सकी। हुकूमत के बयानात और उनके दावों में काफी झुकाव नजर आता है, काफी मुतज़ाद बयानात चीजें सामने आती हैं। जो ये ऐलान करते हैं, दावे करते हैं और जो रियलिटी चीजें सामने हैं, जो चीजें ग्राउंड पे नजर आती हैं उनमें काफी तजादात नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखते। जब हुकूमत के सामने सवाल रखे तो जवाब कुछ और आता है, जब जो महकमा दाखिला पंजाब है उनके सामने सवाल रखे जवाब कुछ और आता है। इसी तरह उलमा कराम जब इनसे सवाल करते हैं कि वो जब निकले तो फायरिंग का आगाज कैसे हुआ, पंजाब हुकूमत कहाँ थी, पंजाब हुकूमत ने हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया अगर ऐसा इक़दाम होने जा रहा था, तो जिस पर पंजाब हुकूमत जवाब देने से कासिर दिखाई देती है। बताया जाता था कि मुज़ाकरात हो रहे थे, ख्वाजा सलमान रफीक ये दावा कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ये दावा कर रहे थे, लेकिन अब वो बातों को अपनी बयानात पर जुटलाते हैं, वो सिर्फ बयानात जो है वो तब्दील करते दिखाई देते हैं कि जैसे शायद उस वक्त इनकी पोजीशन इन्होंने इस्तेमाल में नहीं लिया गया और रियलिटी कुछ और सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन रजा मौजूद थे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि मजहब के नाम पर झत्ते किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी रियासत इस बात की मुतहम्मिल नहीं कि पुरुष तशद्दुद झत्ते पॉलिसी डिक्टेट करना शुरू कर दें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अशद ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी
کو یقینی بنایا جائے. ہر صورت ہر لمحے کے اوپر انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایکشن کے حوالے سے مکمل شفافیت کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ایک بہت